गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और किंग से शहीद भगत सिंह पार्क। आज सुबह थोड़ा सुहावना है, थोड़ा मुझे लगता है ठंडक कम है और सूरज की रोशनी भी लगभग आने ही वाली है और कुछ लोग यहाँ पे पार्क में हैं। और हमारा जो मुहिम है, पहले घूमना, उसके बाद सफाई करना और कुछ लोगों से बात करना। लगभग 8 आदमी से मैं रोज़ बात करता हूँ। Okay. हाँ, प्रोफेशनल को इसलिए चुनता हूँ कि वो उसके थोड़ा आपका दो शब्द किसी का लाइफ बदल सकता है। Right. अच्छा, दूसरी बात, हमारा दूसरा मोटो है पार्क को सुंदर करना है ना। मैं और देखता हूँ डेली विजिट। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना रखा है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। और उसके बाद ये है, चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वो कैसे कर सकते हो? आप किसी गली मोहल्ले में रहते हो, गंदगी है ना, वहाँ तो वीडियो बना ही सकते हो, फ़ोन तो है ना, उसको अपलोड करो ना। और मैं अपलोड जो कर रहा हूँ उसका फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो दिख रहा है ना। और एक दिन में मैं इसलिए 1.5-2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं बच्चों को चलते फिरते स्पोकन इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, पैसे उसकी से नहीं लेता हूँ, है ना। हाँ, अब रही बात, पहले होम्योपैथी में भी नहीं लेता था, अब चूंकि भाड़ा मुझे देना है, खरीदना पड़ता है, तो उतना तो दे दूँगा, है ना। और जैसे बच्चों से मुझे ज़्यादा लगाव है, तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को हमने पढ़ाया होगा आज तक, वो पूरी दुनिया में फैले हैं। और अपने आप को युवा रखने के लिए युवा से तो मिलना ही पड़ेगा। आई एम 65 ईयर ओल्ड, है ना। व्हाट अबाउट योर एज? 24। कंपेयर करो 65 एंड 24, कितने का फ़र्क है ना। अच्छा, यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि किसी स्कूल में थोड़ा सेवा दें फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो फिर बोला आप सैलरी बोलो, तो हमने सैलरी दे सकोगे? आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स, इफ़ आई पुट 70 इट इज़ जस्ट लेस, है ना। तो बात नहीं जमी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि लोग 4,000 और 5,000 में मास्टरों को पढ़वाते हैं। कुछ मोदी कर्मी में मुझे मिले थे। तो खैर आई गई बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप अपना परिचय देते हैं। Hi everyone, I am Digital Abhishek. अच्छा, वेरी गुड। Professionally, I am a digital marketer professional. I yeah. provide services and training both. I have trained across India 10,000 plus individuals and 1,000 plus corporates through my skills. I have provided digital marketing training and skills. Not only just tier 1, tier 2 cities, also tier 3 cities students. Those who don't have knowledge about the skills like what is computer, what is digital, how to protect yourself through cybersecurity frauds. So I basically give the workshops, training, paid training, free training, multiple things through my skills. हमारा इंस्टीट्यूट भी है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने। Maybe one day I will just catch hold of you there at institute. Yes, sir. So make it's it IMTC skills. We provide multiple type of skills training. After learning that, a student, working professional, anyone can get job or to start their freelancing. So I'm contributing like this in this society. Now there is one thing. No skill, no job. Yes. Persons are getting post-graduation, I think graduation, and after just rolling on the road like that. Right. They are not getting any sort of thing. Don't you think it or that besides getting the education, they must be given something particular skill, some skill, so that actually they can deal with the situation. Don't you think it or that the situation is the situation of exploitation? Definitely. You take the example of this Chowkidar Park. Right. He is getting 10,000, but signature is taken on 19,000. Right. And some persons carry hold this laptop there on the back. It's not, sir. I just got the ring, black ring, you can see it. Day and night actually just more work like that. When you ask what about the salary, 10 to 15. 10 to 15. I can't say it or that almost all the persons are getting the same. Definitely. Is there any solution out of that? And somebody tells, why doesn't person go to labor court with a bureau tell? Minimum wages should be 20,000 rupees. Is it not, sir? But no, I don't think it or that persons are getting like that. Maybe person well up to date or not, just well dressed, or maybe the persons in the shape of just a laborer like that. Is it not the exploitation? Earlier, the scenario was something different. Dhoti or langoti, not dhoti or langoti, it's not here. But right now, laptop and this, you can say, white collar, it's not here. This is the thing. What would you like to tell? It's the mentality. Suppose I know some skill, ठीक है, but I'm not confident कि मुझे वो स्किल सीखने के बाद कुछ करना मैं कर सकता हूँ, राइट। सपोज मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने जॉब की, मैंने 4 में था, मैं जस्ट डायल में था, बट मेरी कंपनी में जॉब किया मैंने, देन आई गॉट कॉन्फिडेंट कि मैं बिना जॉब के भी काम कर सकता हूँ। मुझे काम ही करना, मुझे किसी का यूट्यूब ग्रो करवाना, मुझे किसी का सोशल मीडिया ग्रो करवाना है, सो आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। मुझे उसमें किसी सीनियर मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो देन आई गॉट कॉन्फिडेंस, देन आई गॉट अ गुड नॉलेज, देन आई रिजाइन फ्रॉम देयर। I started my own company, I started my own freelancing journey. So पहले तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है, मैं सबको ही बोलता हूँ, अगर आप यू आर ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, फ्रेशर, एनीवन, सो आप 1 ईयर 2 ईयर का ही जॉब करो, ठीक है, जस्ट डू व्हाइट कॉलर जॉब एंड लर्न द एक्सपीरियंस एंड स्टार्ट योर ओन जर्नी। बिकॉज इंडिया है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है,
लाइक ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप कुछ भी बेचना शुरू कर दोगे तो यू कैन ग्रो। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस यू मस्ट हैव टू बी लर्नर। आपको हमेशा लर्नर बनना पड़ेगा उसके लिए, एंड यू हैव टू टेक द रिस्क, जो कि मेन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। नो वन वांट्स टू टेक रिस्क। आई कम फ्रॉम बिहार बेसिकली। बिहार फ्रॉम वेयर? छपरा डिस्ट्रिक्ट। आई एम फ्रॉम भागलपुर। Okay, and the like worst part is Bihar. Like everyone wants to get a government job because they want the security. And as a human, ये जो जन्म है हमारा, it's not about the security. ये जन्म में कहीं सुरक्षा है ही नहीं। आप you will see the nature. Nature के सेंटर में कहीं सुरक्षा है ही नहीं, कहीं सिक्योरिटी है ही नहीं। Everyone is non secure. तो अगर आप जब सिक्योरिटी की तरफ भागोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंप्रोमाइज करोगे, कहीं ना कहीं आप किसी के लाइक अंडर, किसी के गुलाम, इस टाइप की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। So just लीव योर सिक्योरिटी। आप अपने आप की सिक्योरिटी से बाहर निकालो एंड यू कैन जंप बिग हाइट। आपके सामने पूरा आसमान है, खुला है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए और ये यकीन रखो कि हाँ, इफ यू नो समथिंग यू कैन डू समथिंग। अच्छा, वन थिंग मोर इज है ना, जैसे एक सीधा सा हिसाब है, मैं इसको भी लेके आता हूँ। बिहारीच बेसिकली आई सर्व्ड इन अरुणाचल प्रदेश इन 4 स्कूल। वेयरएवर आई सर्व्ड नोबडी वांट टू लिव मी, है ना। लेकिन जहाँ तक रेस्पेक्ट की बात है, लोग उसे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना। एक छोटी सी घटना, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने वहाँ पे असम और अरुणाचल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, तो कैसे लाएं? एक बोलते हैं अतके दूसरा बोलता है आहो ये आहोक आहोक बहोक बहोक, और मैं बोलता हूँ आओ आओ बैठो बैठो। लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो लैंग्वेज है, लेकिन वन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, है ना। वहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे अभी भी एक ठाकुर साहब का इंटरव्यू ये था, वो तो हमने कहा यू डेवलप फ्रॉम सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन टू ह्यूमन बीइंग। यू टोल्ड दैट यू हेल्प फ्रॉम आरा छपड़ा, आई टेल भागलपुर। आउटलुक द सेम, बट फॉर आई कॉलिंग यार, मे बी लैंग्वेज व्हाट इज। आप बोलते हो रवा कहाँ जात बनी, हम बोलते हैं तो कहाँ जाइछो, क्या फर्क पड़ता है? बोल तो वही रहे, समझ तो रहे ना, है ना। जब आंखों में आंसू आती है दुनिया किसी देश में, तो क्या तुम्हें पेन नहीं होता, चाहे वो कहीं यूक्रेन हो जहाँ भी। तो जब हम उस तरह से फीलिंग करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने एक वहाँ का जो ये सीएम था, उसका भाई से हमने कहा कि यार एक काम मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप कोई मेमोरियल तो कर सकते हो। तो उसने बोला सर खराब नहीं पाओगे, एक बात आप बिहारी। हमने सुनो, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। अगर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कहीं कोई स्टेट है जहाँ एक ही गांव में खाना नहीं मिलता फिर भी 75 IIT क्रैक करता है? मुझे बताओ। IAS में सबसे ज़्यादा नंबर किसका? बिहार का है। और ये भी मैं बोल रहा हूँ लेबरर भी बहुत ज़्यादा है, अगर है तो पूरे हिंदुस्तान को तो टिका रखा है, बेचारा काम करता दिखाता है। अच्छी बात, अच्छा खराब आदमी सब जगह है। फिर हमने कहा 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी स्कूल का कोई भी टीचर को मेरे सामने खड़ा करो, अगर वो मुझे हरा देगा आई विल क्विट द जॉब। चुप, एकदम चुप। फिर जानते हमने क्या किया? 5 साल लगे मुझे। 5 साल में हमने अपने स्कूल को चुना। प्रिंसिपल बोला खर्चा कौन देगा? हमने देंगे। 20 से 30 हज़ार हमने दिया। असम और अरुणाचल के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। उसके बाद मैं 16 से शुरू किया था, अभी जाकर के कितने हो गए। अब आने वाले दिनों से हमरे जाने के बाद बंद हो जाएगा। तो उसमें नियम बना था कि जो स्कूल फर्स्ट आएगा अगला साल वही करवाएगा, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। तो फिर आई टुक द लोन फ्रॉम GPF 5 लाख रुपये एंड आई गेव इट एज यू कैन से जस्ट ट्रस्ट, है ना। नाउ इट इज रनिंग। Our name is Inter-State, Inter-School, Inter-Board Fraternity Quiz Trophy Competition। गलत क्या है? आप जैसे मान के चलो, हमारा धर्म ही कहता है कि जो कमाते हो 10% दान करो। दान का मतलब दिल्ली मंदिर ही नहीं, ये भी दान है। हम रहे या नहीं रहे, हम अपना नाम हमने नहीं दिया, फिर वो जबरदस्ती उसने जोड़ दिया झा फाउंडेशन। हमने चलो कोई बात नहीं, चल तो रहा है ना। फिर हमने पूछा यार थोड़ा सा और आगे बढ़ो ना, फ्रेटर्निटी ट्रॉली वाला, फ्रेटर्निटी ठेला वाला, लाइक दैट। उससे कुछ पैसे उसको दो, कुछ इंटरेस्ट लो, उससे बढ़ेगा। एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन। क्योंकि जिस किसी ने जो शुरू किया 2000 से शुरू किया, करोड़ों में कर रहा है, रिस्क लिया। अच्छा, मैं उससे पैसे तो नहीं लेने जा रहा हूँ। अब रही बात, जब तक हम उसमें नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो, मैंने क्लिनिक यहाँ पे खोला, 1 साल रहा, पहले तो ठीक चला, बाद में नहीं। तो हमारा मोडस ऑपरेंडी थोड़ा गलत है। गलत इसलिए कि जो बताता है गरीबी है, पैसा नहीं लेते हैं, चले जाओ। तो एक दिन एक लॉयर मुझे बोलता, वो भी बिहार से, बोला कि सर आपका तरीका गलत है, आप फीस भी ले लो, दवाई का भी दाम ले लो, और किसी को मदद करना उसी पैसे से करो। ऐसे जो फ्री देते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, खाता भी नहीं, फेंकता जहाँ तक करेगा। तो नाउ आई स्विच्ड फ्रॉम दैट प्लेस टू अदर प्लेस एंड अभी 2-3 दिन से अब मैं पहले बोलता इतना फीस लगेगा बेटा। अच्छा, दवाई का दाम जहाँ तक वो तो हम ऐसे नहीं कह सकते तुम्हारा रोग क्या है, नहीं है। हाँ, लेकिन इतना गारंटी दे सकते हैं तुम्हारा रोग जाएगा। हाँ, लिख के बोलोगे तो वो भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए हम पे भरोसा करना पड़ेगा। मान कर, जैसे मान कर ट्रेनिंग दे रहे हो, आप पे हमको भरोसा ही नहीं तो कैसे होगा?
देखिए हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं सर, बोलते हैं कि सर वी प्रोवाइड 6 मंथ ट्रेनिंग, तो दे सेड कि सर 6 मंथ में सीख लेंगे, तो आई कंप्लीटली से कि मेरा सीखने का काम नहीं है, मेरा काम है सिखाना। अच्छा। सीखना आप ही का काम है, बिल्कुल। यू हैव टू डिसाइड कि आपको 3 मंथ में सीखना है, 6 मंथ में सीखना है या 18 मंथ में सीखना है। मेरा काम है सिखाना। मैं 100 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक सबके लिए ट्रेनिंग इक्वल है। बिल्कुल 99 होते हैं कि जो 6 मंथ में सीख लेते हैं, एक होता है कि जो उसको 12 मंथ लग जाता है। तो अगेन सीखना आप ही का काम है। सो सपोज यू आर अ डॉक्टर, आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोवाइड मेडिसिन, प्रिकॉशंस तो काउंसिल भी करेंगे, खाना भी कि सर आप खट्टा मत खाओ, जैसे होम्योपैथी में होता है खट्टा मीठा नहीं खाना है। मैं खट्टा के लिए बना, बोल दो। अगर मैं खट्टा खाता हूँ तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, तो मुझे उस चीजों से परहेज करना पड़ेगा तब जाके। तो वहाँ पे मैं इतना बोल देता हूँ कि आप जो भी खाओ, आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर नहीं खाओ, इतना तो कर सकते हो, है ना। उसके बाद केला मत खाओ, केला का उसके साथ कोई नहीं कोई दुश्मनी है, कोई भी रोग ठीक हो गया फिर हो जाता है। तो खैर उस हम अपने जगह से भटक गए, वो एरिया नहीं। तो बातचीत ये तो बात है कॉमन फॉर्मेट इंटरेक्शन, वी शुड बी एक्चुअली जस्ट मीटिंग ऑन। कौन जानता किसी काम को ना जाए, है ना। आपको जो सुन रहा है हो सकता है आपको कॉन्टेक्ट है ना। अब जैसे कि मान के चलो मोदी केयर में जाता हूँ, रोज लोग ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन हमने कहा यार ट्रेनिंग तो आप दे रहे हो, टेस्टिमनी में एक ही बात बार बार बोलते हो, जो नहीं पढ़ा लिखा है तो चलो कोई बात नहीं। लोगों को जैसे कि मान के हम ही है 40 साल से तो यही काम कर रहे हैं, पर कितना है जो आप देते हो उसको पढ़ के हमको बोलना आप तो कुछ करना नहीं है, और तो कुछ करना नहीं है। और उसका ताली बजवाते हुए बहुत यार, ये भी अब उसके पीछे भी इसका प्रिंसिपल है, ताली बजेगा तो थोड़ा अपना और उसका सप्लीमेंट देगा तो ठीक ठाक होगा। अच्छा, यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर एक लड़का खगड़िया का था, यहीं पर टेंट लगा रखा था कैंप टाइप का, देख रहे कोई नहीं देख रहा उसको। हमने बेटा क्या करते हो? तो सर मैं बीकॉम में पढ़ता हूँ, पार्ट टाइम ये करता हूँ ताकि हमारा पढ़ाई शुरू हो। तो हम रुको, तो मैं इसको लेता हूँ तो अभी देखता हूँ आने जाने वाला वो जो हल्ला कर रहा है इसलिए कर रहा है कि डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो उससे हमारा कुछ नहीं है, मेरा आई डोंट बदर फॉर दैट, अगर वो बदर के काम ही नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि आ गए लोग, इकट्ठा हो गए भीड़। उसके बाद हमने कहा कि यार खाली खड़ा होने से नहीं होता, थोड़ा सा एक नहीं कहावत है आपका भोजपुरी में, नाचे गावे तुरे थान ओके दुनिया रखे मान, है ना। नहीं तो नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कमेटी वाला हमारे वजह से बना, बाद में हमको धीरे से ये है ना। तो आई एम फाउंडर एडमिन। हमने कहा आप जैसे कल उस परसों अवार्ड की बात है, आई हैव बीन गिवन गवर्नर्स अवार्ड ऑफ माई फ्रॉम माई स्टेट, यू कैन शेयर, एंड आई वाज द बेस्ट टीचर। अवार्ड की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कविता भी लिखता हूँ, और वो कविता इससे भी दोनों मिलता है, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। अच्छा, एक दिन उठे लोग ये करने के लिए, हमने चला के देखो नानी याद दिला देंगे यार तुम मुझे जानते नहीं हो, है ना। उसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। और नहीं तो इतना विरोध के बाद भी हम टिके हैं, ये कम है ना। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन कमेंट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, चलो कोई बात नहीं, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, एक प्रॉब्लम तो बिहार से भी है, अगर हमारे घर में काम हो तो लोगों मुझे क्यों बोलेगा, है ना। हम अपने घर में काम क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें मैं मैट्रिक का एग्जाम दे के गया था हरियाणा, है ना। तो वहाँ एक लेडी मेरे से पूछती है बिहार में बहुत गरीबी है क्या। हमने क्यों, सब यहीं काम करने आ जाता है। हमने कोई गरीबी सिर्फ भी नहीं है, ये जो यहाँ काम करता है अपने बिहार में करेगा ज़्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन वहाँ उसको शर्म लगता है। और बिहार में ऐसे भी लोग हैं जिसके 10 के पास 10,000 बीघा खेत है, वो चाहेगा 5 कंपनी खड़ा कर सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। उसके पास स्किल है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है नहीं होता है, नहीं दूर का डोल सुहावना होता है। इसे मान को बोलता अरे दिल्ली में इतना मिलता है, मैं देख रहा हूँ स्कूल में 4,000 5,000 देना है ना, किसी दुकान में पूछो तो कितना 8,000 7,000 ऐसे लाइक देते है ना। तो वो तो कुछ नहीं उसमें, तो इसलिए वो वहाँ भी कमा सकता हाँ है, ज़्यादा उससे ज़्यादा कमा सकता है। कभी हम किसी को कहा कि यार 2-3 हज़ार में जो काम करते हो उससे बढ़िया है तुम प्याज बिक्री करो ना। अपने भांजा को ही बोला था, तो भांजा बिगड़ गया, मामा हमको बोलता है ना प्याज बिक्री करोगे तो 1,000 रुपये रोज़ कमा लोगे, और किसी दुकान में जाके काम करोगे तो कितना देगा, 3,000 4,000 से ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हारा टाइम भी जाएगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा हूँ। अब जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर भी है, जैसे कि देश को मैं लेता हूँ, तो क्या यह देश भिखारियों का देश आने वाले समय में हो जाएगा। बिना काम किए हम किसी को कुछ भी देते हैं, है ना। और वहाँ पर भी हमने कुछ ये सोचा है कि अगर देश बचाना चाहते हो तो भाई आगे बढ़ो। अच्छा, आप केवल नौकरी क्यों सोचते हो, आप ये जो पार्लियामेंट है या असेंबली ये भी तो नौकरी है ना। नौकरी है, 13 करोड़ बेरोजगार पढ़े लिखे हो, इनसे तो बेटर हो, अभी जो लोग हैं उनसे तो बेटर हो। ये कुछ नहीं करते हैं, खाली इसका क्लेम उसका ब्लेम, उसका ब्लेम उसका ब्लेम, भाषण है भाषण, कुछ नहीं होता। इसलिए हमने वहाँ भी एक मुहिम बनाया है, अगर एक स्कूल में चपरासी रखते हैं तो 8 पास मांगते हैं, तो जिसके कंधे में हम देश का भार देते हैं उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। दूसरी बात, उसे भाषण लिखने आता है कि नहीं, बोलने आता है कि नहीं। तीसरी बात, वो बैक बेंचर तो नहीं है। चौथी बात, वो आपके एरिया को जानता है कि नहीं, आपके मोहल्ले को साफ सुथरा रखता है कि नहीं, है ना। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि उसका चरित्र कैसा है ना, क्योंकि देश तभी है जब
वो अच्छा होगा या हम अच्छे होंगे। और एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा तथा यथा प्रजा तथा राजा, है ना। आज जैसे मान के चलो आपको 3,000 दे दिया, पूरा मोहल्ले में गंदगी है, अब बीमारी इतनी बड़ी भयंकर होगी कि 3 लाख खर्चा करो, कहीं ये भी तो सिस्टम नहीं है बिजनेस का। चल भैया पैसा दो, बीमार करो, फिर वो दिक्कत होगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने जैसे कि अभी जो प्रॉब्लम है समाज का या जो भी, एक तो कम्युनिकेशन गैप है, लोगों से बात नहीं करते, तो उसको दूर करने के लिए, और उसके वजह से डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुसाइड करते हैं। वहाँ भी हमने एक लाइन बनाई है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। क्या गलत है? नहीं। कोई नहीं मिलता, पेट से बात करो, पेट से बात करो। और उत्तम नगर वालों को बता ही दिया, उत्तम नगर गंदा नगर लाई दे। उसके बाद ये भी हमने सोच रखा है कि हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो। अब संविधान का ज्ञान क्या हो? अगर संविधान को आपका ज्ञान होगा तो ये लोग ठगेंगे नहीं ना, नेता लोग नहीं ठगेंगे ना। हाँ हाँ। उसके बाद है हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं ना। और यहाँ जो पार्क के लिए जो हमने टैगलाइन बना रखे हैं, मैं लिखता भी हूँ, पोइट भी हूँ, है ना। तो उसमें क्या है कि उसमें तो आपको बताया, तो फिर हमने एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। ये तो मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, पार्क किसी के बाप का नहीं है, सबका है ना। और उसके बाद फिर ये है जैसे कि कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1,000 आदमी आता होगा, 2,000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो उठा सकते हो, हाथ तो नहीं लगाना, हमको देखते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद है जैसे कि मान के चलो, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। बस यहीं ख़त्म करेंगे, है ना। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। सभ्य स्नो का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, गंदा ये पार्क में कुत्ता लेके आते हो, जहाँ तक गंदा कर, जाहिल अनपढ़ हो कि नहीं आप पूजा करते हो घर में, उसकी गंदगी सब बाहर पार्क में फेंक देते हो, गंदा है कि नहीं। उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, पे हाथ में ताश का पत्ता है ना, हुआ किसना, माने कब मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा। इन सारी बातों को हटाओ। और लास्ट है आपका, कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, आदमी को आदमी ही रहने दो, है ना। ये गलत तो नहीं है। और पार्क को सोचो ना, पार्क अगर ठीक है तो आप भी ठीक हो। और दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, गंदा पार्क गंदा समाज, है ना। समाज के हिसाब से स्कूल बनता है, समाज के हिसाब से ये बनता है, ठीक ना। अब लास्ट लाइन यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। पार्क जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। और पार्क को और कैसे ठीक किया जा सकता है, बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। दो लाइन में बता दो आप, पार्क कैसे ठीक हो सकता है। जैसे युवा जनरेशन को जुड़ना चाहिए। हम लोग तो पके आम हैं, कभी भी निकल जाएंगे, है ना। जो भी यूथ है, लाइक मैं देखता हूँ काफी यूथ लोग इंक्लूडिंग पार्क में आते हैं। सो मैंने जाते नहीं, ये जो डिवाइसेस हैं वहीं रहता है। आप हम नहीं भी हैं तो उससे लेकर के कहीं भी जाते नहीं, 2-4 प्लास्टिक उठा लो, उसके रख दो वहीं पे, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एक तो चीज़ है कि साफ करना, दूसरी चीज़ है, दूसरा उसका एस्पेक्ट है गंदा करना। अगर डेली कोई गंदा कर रहा है, आप कितना भी साफ करो तो फिर गंदगी बनी रहती है। तो रोकना, गंदा करना ज़्यादा जरूरी है। वो ठीक है, कंपैरिजन साफ करना। उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। एक दिन कोई RSS वाला हमको बताया, वहाँ पे आप देखो बहुत कूड़ा था वहाँ पर, है ना। सर उसको कैसे साफ है, मैं आप तुरंत साफ कर देता हूँ, उसका तरीका मेरे पास रेडीमेड है। साफ करना, लेकिन कल से शाखा आप वहीं करो, गंदा करना का बंद कर देगा। आप कमेटी में 150 आदमी हो, है ना, 4 भाग में बांटो उसको, अलग अलग एरिया दे दो उसको साफ करने के लिए। उसका संडे में साफ करने के बाद निकलो आसपास मोहल्ले से गंदा आता है ना, उसको बताओ ना यार, उसकी परेशानी सुनो, वो ठीक हो जाएगा। आप करोगे नहीं, सुस्त सिचुएशन ऐसा बना रहे हमको कमाई होता रहे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बहाने में, है ना। ये तो कुछ नहीं काम किया आपने, ठग लिया। अच्छा, जो भी यहाँ पे आया है वीडियो बना के देखने के बाद, पहले तो कुछ नहीं, क्यों नहीं आया था? हमारे आने से पहले बनना था नहीं, सब नहीं बना। और यही भी आपने ओपन जिम दिया है, ये ओपन जिम तो ये झुंझुना जैसा दे दिया है, झुंझुना समझते हैं ना, 6 महीने नहीं वो टूट गया, है ना। ये जो बच्चों का पार्क है एकदम बेकार है ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या गरीबों को जीने का हक नहीं है? हम हस्तसाल में गए थे, वहाँ पे पार्क में, वो भी DDA का पार्क है, वो बहुत सुंदर है। ये बंदर क्यों है? इसलिए बंदर, बड़ा वाला पार्क, हाँ, ये बंदर क्यों है? इसलिए बंदर है कि हम मतलब कलंदर है, कहने का मतलब है कि हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। और जब सजग होगे तो होगा। जैसे महिलाएं बोली हमको यूरिनल चाहिए, हमने एक काम करो, मैं यूरिनल वहाँ पे खड़ा होता हूँ, आप 10 इकट्ठा हो, आप बोलो तो आपका बन जाएगा, है ना। एक बोलने से नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि संगठन में ताकत होता है, मानो या नहीं मानो। अच्छा, दूसरी बात, जब अकेले में बैठ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बैठ सकते?
अच्छा लास्ट अब अपना एड्रेस बता दो जहाँ पे कोई आपको कांटेक्ट करे, जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताए थे। या इट्स इन पूरा बोल नगर दो। वेस्ट, हाँ मेट्रो गेट नंबर 1 के ठीक सामने इंपीरियल इंस्टीट्यूट, अच्छा यहीं पे। फ़ोन नंबर ही बोल दो कोई। Yes, it's 6250282010, and you can directly search me on Google named Digital Abhishek. You can get the results. अच्छा मैं थोड़ा अपने विषय में कभी हमारे क्लिनिक में आओ, मुझे सजेस्ट करो कैसे वो अपलिफ्ट होगा। हमारा मकसद है पैसा, जैसे मोदी केयर बोलते हैं ये देते हैं वो देते हैं। हमने कहा देखो मुझे कार मिलेगा तो मैं 10 ई रिक्शा लूँगा, मैं 10 ई रिक्शा उनको लोगों को दूंगा जिनको ज़रूरत है ना, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं ऐसा एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जो CBSE का हो, जिसमें टीचर की सैलरी कम से कम 50,000 हो, वो नहीं 4,000 वाला हो। ये मैं सपने देखता हूँ और लोग बोलते हैं इसको लिखोगे तो पूरा होता है। ऊपर वाला अगर मानता है तो वो जो असम का जो रोटी हमने खाया अरुणाचल का, उस बॉर्डर में अगर स्कूल खोल दिया तो क्या दिक्कत है। लोग बोलते हैं बिहार में क्या, अरे कहीं तो ये तो पूरा हिंदुस्तान अपना है यार, पूरा बसदा अपना है, बिहार के यूपी क्या होता है। चलो फिर से आपको धन्यवाद, ईश्वर करे आप एकदम प्रोग्रेस करो। शादी वादी तो नहीं किया अभी? नहीं। क्या नाम लिखते हो? अभिषेक। अभिषेक आगे, क्योंकि शादी में तो हाँ तिवारी। तिवारी पंडित जी हो। यस। चलो गोत्र क्या है, गोत्र मालूम है हाँ क्या? सावर। महेश, अर्थात हम लोग हम भी सावर नहीं है यार। वेरी गुड, थैंक यू।